Half yearlies are about to come, and you are also worried about mathematics. Are you also stuck in the questions of trigonometry, unable to solve them, and also finding problem in triangle? So, here's are the solution for all this thing. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, I am Ayushi, currently in class 11th. In my class 10th, I had standard maths and I have scored 95 marks in that. In this video, I am going to share with you all the tips, tricks and strategies which you need to score that much or much more good from that. Even from it. Okay, so let's start the video. So firstly we will talk about NCRT. See, NCRT is like the key. It is like God. You have to do each and every question of NCRT properly. Sometime we see is that directly questions of NCRT are coming in our board examination. So what we have to do is directly do NCRT questions. Each and every question must be done properly. Second is find your weaknesses and strength. See, I am explaining an example of mine. In my class 10th, in my pre-board examination that I have scored not so well, so I analyze कि where I am lagging behind, कि मैं सब कुछ करके आ रही हूँ still मेरे marks क्यों नहीं आए. तो मैंने ये देखा कि MCQs और जो केस स्टडी वाला पार्ट था वहाँ पे 1-1 मार्क करके मेरे मार्क्स ऐसे बहुत ज़्यादा कट रहे थे. बट जो क्वेश्चंस वाले पार्ट थे जहाँ पर क्वेश्चंस करना था, मेरे वो सारे क्वेश्चन सही थे. लाइक कोई भी मिस्टेक वहाँ पर नहीं हो रही थी. कुछ सिली मिस्टेक्स थी जो कि थी वहाँ पर, बट स्टिल सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स कट रहे थे इन द MCQs एंड इन केस स्टडीज. सो फॉर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड क्वेश्चन बैंक ऑफ एडुकार्ट. एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है. वहाँ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चन एंड PYQs. दीज ऑल क्वेश्चन आर रियली वेरी गुड एंड यू कैन डू प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. उसके अंदर एक पोर्शन होता है पुश योर सेल्फ. वहाँ पर जो क्वेश्चन की क्वालिटी इट इज़ लाइक टू गुड एंड solve question from there, you will really be feel like yes it is such a great book. Next is reference book. See, हम देखते हैं कि हमारे आइट साइड सब कोई ना कोई बुक कर रहे हैं. हमारे बेंच में दे आर डूइंग ओजवाल, समवन इज प्रेफरिंग RD, समवन इज डूइंग like another etc lot of books. So is it actually necessary to do this all the books? The true answer for this thing is somewhere yes or somewhere no. What you have to do is take one question bank like any kind of book, any reference you can take along with your NCRT. कोई भी बुक को आप लीजिए एंड डू दैट पर्टिकुलर बुक फुली. मतलब आप उसका एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कीजिए. लाइक you have no need to do all the books like RD, RS, Oswal, Educart, etc. You have no need to do these all the books. What you have to do is take a particular book, take a single book and do all the questions of that book with like full honesty, and then you will feel so confident in maths. I have personally used क्वेश्चन बैंक ऑफ RD शर्मा. देन आई विल प्रेफर यू दैट पर्टिकुलर बुक ओनली, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है एंड यू फील्स कॉन्फिडेंट. लाइक व्हेन वी कम अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चन है जो कि आप कर लेते हो एंड यू बिकम सो कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. मेरी ट्रिग्नोमेट्री जो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी एंड आई वॉज एट द एंड टाइम कि ट्रिग्नोमेट्री तो मैं संभाल लूँगी, उससे कोई भी क्वेश्चन है. इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी. And if you are also finding problem in trigonometry, so go for that. So in trigonometry what you have to do is कि कोई भी particular question दिया prove करने वाला, try to convert that particular question in the form of sine and cos. Then you will find कि आप उसे करते जाओ, like जो भी step है उसमें कुछ भी समझ में आ रही है कि ये particular चीज़ कर सकते हैं, just do that. जितना समझ में आ रहा है करते जाओ and at a time you will realize कि question is telling itself कि what we have to do in that thing. So by this you will be able to solve that particular question. Next is practice, practice and practice. See, maths is all about practice. If you will not practice questions, you will not able to do that thing. So what you have to do is practice questions and be consistent. Daily you have to do at least 5 questions. Maths, like any of the other subject, you can skip, but never skip maths. You have to do daily. You have to practice questions daily with बिल्कुल लाइक टाइमर लगा के आपको क्वेश्चंस को करना है. सो दिस इज़ माय नेक्स्ट टिप लाइक विच आई विल गोइंग टू गिव यू कि क्वेश्चन को टाइमर के साथ कीजिए. लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर था, लाइक अगर आप किसी अपने सीनियर से पूछोगे दे विल टेल कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बट
टू बी वेरी ऑनेस्ट द पेपर वॉज नॉट दैट मच टफ, इट वॉज लाइक लेंदी था थोड़ा, बट अगर आप उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो लाइक हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना है, टाइमर लगाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है ताकि आपका पेपर नहीं छूटेगा, और एट द एंड यू विल फाइंड यूर सेल्फ कि मेरा पेपर तो 2 या 2.5 घंटे में ही हो जा रहा है, और बाकी जो टाइम है यू विल अलॉट दैट फॉर रिविजन पर्पस। सो व्हाट यू हैव टू डू इसकी टाइमर लगाइए, टाइमर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सो फॉर अवॉइडिंग ऑल द सिली मिस्टेक्स डू ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप। कभी कभी हम ऐसा होता है कि माइंड में एक पर्टिकुलर स्टेप कर लेते हैं, उसमें लिखना नहीं, भूल जाते हैं, हम नहीं लिखते, और इस वजह से हमारे जो वहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं, लाइक माइंड में करते तो ड्यू टू सम प्रेशर एक्सटर्नल और लाइक एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पर गलतियाँ हो जाती है और फॉर दैट हमारे मार्क्स कट जाते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में ना स्टेप मार्किंग होती है, लाइक अगर कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पर राइट ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपरली कि इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग एंड बाय दिस थ्योरम वी आर प्रूविंग दिस एंड एट द एंड हिंस प्रूव्ड। सो यू हैव टू डू दीज ऑल द थिंग्स वेरी प्रॉपरली, क्योंकि देयर आर मार्क्स फॉर दीज ऑल द थिंग। इफ यू विल चेक द आंसर की ऑफ CBSE you will find that ki yes there are the things, here are marks are allotted for this all the things at all. So and at the end, once your syllabus is completed, once your things are done, what you have to do is practice questions, do sample paper, do PYQ। see PYQ is like must, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, हर साल आते हैं, so just do that particular thing। So next step is make short notes for each and every chapter. You have to make short notes. Now what I mean by this thing, so what you have to do is कि like एक पर्टिकुलर चैप्टर हुआ, उसके अंदर क्या थ्योरम्स है, क्या फार्मूलाज है, क्या की कॉन्सेप्ट्स है, आपको उसको सबको एक पर्टिकुलर पेज में या फिर कॉपी को ऐसे करके, जो दोनों पेजेस होते हैं साइड में, उसमें पूरी चीज़ को कॉन्साइज करके लिख देना है। by this you will be like find it really very helpful to revise all the key concept, क्योंकि MCQ में, केस स्टडी में कहीं ना कहीं पे 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाओ, तो उसके लिए आपको ये चीज़ करना है, फार्मूला शीट बनाना है हर एक चैप्टर की कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे क्या फार्मूले हैं, क्या चीज़ें हैं, यू हैव टू डू दिस थिंग। नाउ that's it for today's video. Thank you so much. If you like the video, if you liking my content, then like, share and subscribe the channel.